রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভগবান কৃষ্ণের পুজো করলেই প্রচুর বৃষ্টি নামে। আবার সেই বৃষ্টি থামানোর জন্য তাকেই ভগবান ইন্দ্রদেবের প্রার্থনা করতে হয়। শুনতে অবাক লাগলেও কার্যত এমনটাই মন্তব্য করেছেন রাজস্থানের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী কে বিষ্ণই। আর মন্ত্রী মহাশয়ের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চর্চা শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনীতিতে। জল জমে যাওয়া সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে কে বিষ্ণই বলেন, ভগবান ইন্দ্র কৃপাশীল, তবে যবে থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এসেছে আর যখনই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভরতপুরে ভগবান কৃষ্ণের পুজো করেন তখনই এখানে বৃষ্টি হয়, এত হয় যে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীকে ভগবান ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যে বৃষ্টি কিছুটা কমিয়ে দিন। ভাবতে পারছেন, এটা বলছেন একজন মন্ত্রী। তো কে বিষ্ণই এ বিষয়ে তার মুখ্যমন্ত্রীর প্রসঙ্গে প্রশংসা করতে গিয়ে কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। हम जिस जिले की बाड़मेर बालोतरा की चर्चा कर रहे हैं, इंद्र भगवान मेहरबान है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और जब जब हमारे मुख्यमंत्री जी भरतपुर में कृष्ण भगवान की पूजा करके आते हैं, तब तब यहाँ पर बारिश इतनी होती है कि फिर से मुख्यमंत्री जी को पलट करके उनको इंद्र भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप इंद्र भगवान थोड़ा सा धीमा रुख करें ताकि यहाँ पर हमारी जनता थोड़ा आवागमन भी ठीक कर पाए। ये जो गंदे पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस गंदे पानी का भी पादरू की इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कच्छ की खाड़ी तक अलग से पाइपलाइन बिछा करके उस गंदे पानी को निकालने का परमानेंट सॉल्यूशन भी, और अभी भी इस पानी को अन्यत्र और कहीं पर शिफ्ट करने के लिए भी हमारे प्रभारी मंत्री जोराराम जी कुमावत को, हमारे विधायकों को, अमीर सिंह जी को, हमारे अरुण जी को, हम सबको निर्देशित भी किया है कि आने वाले समय में किस तरीके से। लेकिन उस गंदे पानी के अंदर भी मैं आपको बताते हुए बताना चाहूँगा कि वहाँ पर भी किसान अपनी फसल ले रहे हैं। वहाँ पर जो एक असुविधा एक कालखंड में पूर्ववर्ती सरकारों के समय में रही है, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई तब सड़क भी ऊपर उठाई गई है। उनके ये अध्ययन का विषय, लेकिन जैसे ये विषय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप और हम सबको ज्ञात है कि अब इन कालखंड में पिछले 1-2 दशक में बनना शुरू हुई है। ये पूर्ववर्ती सरकार के समय पर ऐसा किसानों के इन जमीनों को खराब होने से उनको रोकना चाहिए था। उन्होंने बहुत गलत काम किए, उन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए, लेकिन फिर भी उनके इन खोदे हुए खड्डों को हम पूरा भरने का काम करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी बहुत अच्छी से चिंता भी कर रहे हैं, किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी से इस टेक्सटाइल और गंदे पानी का हम किस तरीके से निस्तारण कर सकें। ग्रीन हाइड्रोजन तक का भी विचार किया जा रहा है कि इस गंदे पानी को ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक से आगे आने वाले समय में शुद्ध किया जा सके। वैसे भी कुछ चर्चाएं अलग अलग जानकारों से चल रही है। আপনারা একটা কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন, অয়েলিং করা বা তৈলমর্দন, বাটার লাগানো, চাটুকারিতা। যদি এই ধরনের এই চাটুকারিতা, অয়েলিং এই সমস্তর একটা কম্পিটিশন হতো তাহলে এই মন্ত্রীমশাই তিনি কিন্তু একটা কোনো না কোনো জায়গায় থাকতেন অবশ্যই। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা আর তারই সরকারের মন্ত্রী কে বিষ্ণয়ের এহেন মন্তব্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে বিভিন্ন মহলে। বিষ্ণয়ের মন্তব্যের সমালোচনা করে রাজস্থানের বাইতু বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক হরিশ চৌধুরী বলেন, মানব সৃষ্ট সংকটের দায় ঈশ্বরের উপর চাপানো হাস্যকর। চৌধুরী দাবি করেন যে যোজরি নদীর আশপাশের এলাকা ডুবে গিয়েছে এবং দূষিত জল বাড়িঘর, খামার এবং অন্যান্য ভবনে প্রবেশ করেছে। বৃষ্টির সময় নদী উপচে পড়লে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। এই বিষয়ে স্থানীয়রাও বিধায়ককে সমর্থন করে জানিয়েছেন বহু বছর ধরে তারা এই সমস্যায় ভুগছেন। যোধপুর এবং পালির কারখানা থেকে দূষিত পদার্থ নদীতে মেশা বন্ধ করতেও এখনো পর্যন্ত কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কিন্তু রাজস্থানের ওই মন্ত্রী কে বিষ্ণই তিনি তো তার বসের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। আর পঞ্চমুখ হবেন নাই বা কেন বলুন, সবই তো নাম্বার বাড়ানোর খেলা। তাকেও তো তার পজিশন ধরে রাখতে হবে। পরের বার যখন ভোট আসবে এবং ভোটে জিতলে মন্ত্রকটাও তো একটু শক্তিশালী পেতে হবে, তাই না?
সেই কারণে মন্ত্রীমশাই তিনি এই ধরনের চাটুকারিতায় ভরা প্রশ্নগুলো তুলে গিয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। তো কি বলেছেন এই কে বিষ্ণুই শোনাবো আরও একবার। हम जिस जिले की बाड़मेर बालोतरा की चर्चा कर रहे हैं, इंद्र भगवान मेहरबान है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और जब जब हमारे मुख्यमंत्री जी भरतपुर में कृष्ण भगवान की पूजा करके आते हैं, तब तब यहाँ पर बारिश इतनी होती है कि फिर से मुख्यमंत्री जी को पलट करके उनको इंद्र भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप इंद्र भगवान थोड़ा सा धीमा रुख करें ताकि यहाँ पर हमारी जनता थोड़ा आवागमन भी ठीक कर पाए। ये जो गंदे पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस गंदे पानी का भी पादरू की इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कच्छ की खाड़ी तक अलग से पाइपलाइन बिछा करके उस गंदे पानी को निकालने का परमानेंट सॉल्यूशन भी, और अभी भी इस पानी को अन्यत्र और कहीं पर शिफ्ट करने के लिए भी हमारे प्रभारी मंत्री जोराराम जी कुमावत को, हमारे विधायकों को, अमीर सिंह जी को, हमारे अरुण जी को, हम सबको निर्देशित भी किया है कि आने वाले समय में किस तरीके से। लेकिन उस गंदे पानी के अंदर भी मैं को आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर भी किसान अपनी फसल ले रहे हैं। वहाँ पर जो एक असुविधा एक कालखंड में पूर्ववर्ती सरकारों के समय में रही है, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई तब सड़क भी ऊपर उठाई गई है। उनके ये अध्ययन का विषय, लेकिन जैसे ये विषय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप और हम सबको ज्ञात है कि अब इन कालखंड में पिछले 1-2 दशक में बनना शुरू हुई है। ये पूर्ववर्ती सरकार के समय पर ऐसा किसानों के इन जमीनों को खराब होने से उनको रोकना चाहिए था। उन्होंने बहुत गलत काम किए, उन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए, लेकिन फिर भी उनके इन खोदे हुए खड्डों को हम पूरा भरने का काम करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी बहुत अच्छी से चिंता भी कर रहे हैं, किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी से इस टेक्सटाइल और गंदे पानी का हम किस तरीके से निस्तारण कर सकें। ग्रीन हाइड्रोजन तक का भी विचार किया जा रहा है कि इस गंदे पानी को ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक से आगे आने वाले समय में शुद्ध किया जा सके। वैसे भी कुछ चर्चाएं अलग अलग जानकारों से चल रही है। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় তো ভারী পঞ্চমুখ রাজস্থানের এই মন্ত্রী, কিন্তু যে এলাকায় এই ধরনের ভারী বর্ষণ এবং যে এলাকার মানুষ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন, তারা কি এইটায় সন্তুষ্ট হচ্ছেন? তারা কি এই ভবি ভুলে যাচ্ছেন? তারা কিন্তু ভুলছেন না। তারা এটাই ভাবছেন যে ভোটের আগে নানান রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভোট মিটে যাওয়ার পর আর নেতাদের টিক্কি খুঁজে পাওয়া যায় না, তারপর আর কেউ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন না। আর এটাই আমাদের দেশের রূঢ় বাস্তব। যদিও মন্ত্রী কিন্তু মেজাজেই রয়েছেন, তিনি তার মুখ্যমন্ত্রীর মানে তার যেই ক্যাবিনেটের তিনি সদস্য, তার সুপ্রিমোর হয়ে ঢালাও প্রশংসা করলেন। আর কি বলবো বলুন, চালিয়ে যান তিনি, উন্নতি নিশ্চয়ই হবেই হবে। আপনারা কি মনে করেন জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।